محبت کی دہلیز پر غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ماموں جان۔ ارے آج تو سب آئے ہیں، کیسے ہیں بھائی؟ ہم ٹھیک ہیں لیلا اور شہروز، کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ پروش بیٹا کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ماموں، آج چھٹی تھی تو سوچا آپ کی طرف چکر لگا لیں۔ ہاں ضرور، بیٹھو۔ بھائی کیسے ہیں؟ آئی ایم فائن۔ میری بہن کیسی ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ امیمہ اور آریان کہاں ہیں؟ بیٹا وہ اپنے کمرے سے نکل کر جھانک ہی لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں مطلب کمرے سے نکلتے ہی نہیں ہیں، شہروز صاحب کا کہکا لگا تھا۔ اچھا بلائیں تو۔ ویسے میں سب کو ایک بات بتاؤں، پروشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پروشہ بتاؤ، کامل صاحب نے کہا تھا، جس پر رازان اور لیلا بیگم نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ مما بتانے دینا، پروشہ منہ بند رکھو اپنا۔ لیلا بیگم نے سرگوشی کی تھی۔ بھائی، امیمہ بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ مائی سسٹر کیسی ہو؟ بھائی آپ بتائیں، بڑے پیارے ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ تو ہو گئے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے اتنا پیارا لگنے کی؟ ندا نے کہا تھا۔ لڑکی، میرا مطلب بھائی کی منگیتر، پروشہ نے لڑکی بولتے بولتے کہا تھا۔ ویسے بھائی آپ کی منگیتر کہاں ہے؟ امیمہ نے شرارتاً کہا تھا۔ بھاڑ میں، انایا نے جلے بھنے لہجے میں آہستہ سے کہا تھا۔ ارے انایا، بھاڑ میں نہیں ہے، وہ تو میرے دل میں ہے۔ رازان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا تھا اور دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو دل میں ہی رکھے نا، ہم نے کہا ہے کہ اسے باہر نکالیں۔ اوہو، لگتا ہے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ جی نہیں، میں نہیں جلتی کسی سے، اور ویسے بھی بندے کی شکل اچھی ہو پھر بھی جلوں میں، لیکن بہت بری بات ہے۔ دیکھیں ماموں جان، آپ کی بیٹی جل رہی ہے، پھپھو اپنے بیٹے کو سمجھا لیں۔ رازان کیوں تنگ کر رہے ہو؟ مما پہلے اسی نے کہا تھا میری منگیتر کے بارے میں۔ آپ شاید بہت پیار کرتے ہیں اپنی منگیتر سے، اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے جل رہے ہیں۔ مطلب جلنے والی چیز بھی ہو تو بندہ جلے نا۔ اوہ تو یہ بات ہے، ہم سے جلنے کی ضرورت نہیں، چاندنی سب کی قسمت میں کہا۔ وہ شعر بولتا ہے، چاندنی، وہ ہنستی ہے۔ بیچارے چاند کو بھی جب پتہ چلے گا کہ یہاں زمین پر کس کس کو چاند اور چاندنی کہا جا رہا ہے تو ایسے نہ ہو کہ وہ خودکشی کر کے زمین پر ہی گر جائے۔ مما اب خود ہی دیکھ لیں کیا کہہ رہی ہے۔ انایا، بری بات بیٹا۔ پھپھو اب بتائیں، مجھے کوئی چاند کہے تو اس کا کہنا بنتا بھی ہے، لیکن کہہ کر رازان کی طرف دیکھتی ہے، جس پر وہ آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن کیا؟ کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ کیوں، خود تم کسی ریاست کی شہزادی ہو؟ ہاں ہوں نا، ریاست ملک کی شہزادی۔ مذاق ایسا کیا کرو جو اچھا لگے، یہ پسند نہیں آیا مجھے۔ جی نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، اور آپ کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ ویسے آج آپ نے اپنی منگیتر سے ملنے نہیں جانا؟ تم یہ بتاؤ، تمہیں اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ مجھے بھلا کیوں ہوگی؟ سر بیگ صاحب آئے ہیں، ملازمہ بتانے آئی تھی، اندر بلاؤ، احمد ملک نے کہا تھا۔ جی سر۔ دیکھا، آ ہی گئی آپ سے ملنے، آپ کی منگیتر۔ آپ ملنے نہیں گئے تو وہ ملنے آ گئی۔ ہاں تو پیار کرتی ہے مجھ سے، اس لیے ملنے آئی ہے مجھ سے۔ تو آپ کے گھر ملنے جاتی نا، ہمارے گھر کیوں آئی؟ تمہارے سوال ختم ہو گئے ہوں تو اب بس کر دو یار، ایسے لگ رہا ہے انٹرویو لے رہی ہو۔ السلام علیکم انکل آنٹی، نتاشا سب سے ملتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سب کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک، بیٹھیں آپ لوگ۔ آ گئی آپ کی جلی ہوئی، میرا مطلب ہے آپ کی چاندنی، جائیں ملنے؟ بڑی بدتمیز ہو گئی ہو، نہایت بھی ساتھ لگایا کرے۔ ہاں وہی، نہایت بدتمیز ہو گئی ہو۔ شکر ہے آپ نے بتایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ رازان، نتاشا اٹھ کر رازان کے گلے لگی تھی۔ استغفر اللہ، انایا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ رازان مسکرا دیا تھا انایا کی اس حرکت پر۔
कैसे हो राजान? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आई एम आल्सो फाइन। आर्यान और बाकी सब से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हुआ था। अनाया, तुम कैसी हो? सामने ही हूँ तुम्हारे, देख लो। ओके, नताशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था। और बताएं, कैसे हैं बेग साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये लड़का कौन है? अहमद मलिक ने पूछा था। ये मेरा भांजा है, हादी। अमेरिका था, कुछ दिन पहले ही वापस आया है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है, हमना बेगम ने कहा था। वो नजरें झुकाए बैठा था। बच्चा कहाँ है? गधा है पूरा, आर्यान ने मामा के साथ बैठे मजाक उड़ाते हुए कहा था। जी नहीं, ये खिताब मामू ने आपको दिया है। और अब सही मानों में आर्यान की हंसी को ब्रेक लगी थी। यार बच्चा, ऐसे शोहर की बेइज्जती नहीं करते, आपको नहीं पता अल्लाह नाराज होते हैं। मैंने कब की है आन? मामू ने कहा था। तो तुम बार बार याद दिलाओगी अब? नहीं ना आन, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अब आप मुझे मनाओगी, मैं भी अब नाराज हूँ। यार नहीं करे ना आन, मजाक था। अच्छा ये ले, कान पकड़ लेती हूँ। ठीक है, सोचेंगे। फरहान पानी पकड़ा यार। आर्यान ने पानी का गिलास मुंह से लगाया था। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं ब्लैक साड़ी पहनकर आपको मनाऊंगी, फिर तो मान जाएंगे ना। और आर्यान के मुंह से पानी फवारे की सूरत में बाहर निकला था और खांसी शुरू हुई थी। क्या हुआ है आर्यान, तू ठीक है? फरहान ने पीठ सहलाई थी। अहमद मलिक समेत सब ने मुड़कर उसे देखा था। साहबजादे ठीक हो? अहमद मलिक ने कहा था। जी डैड। भाई कहीं ब्लैक? अभी अनाया बोली ही थी कि आर्यान ने उसे घूरी दी थी कि चुप रहो। आन, आप ठीक हैं? बच्चा खबरदार, जो वो आपने पहनी, जब मैं कहूँगा तब पहननी है। लेकिन आन, कितनी प्यारी है वो, नॉवेल्स में हीरोइन ऐसे ही पहनती है और हीरो को राजी करती है। हाँ, और दुनिया जहान का चीप रोमांस आप नहीं पढ़ा हुआ है। आन, ऐसे तो ना कहे ना, मैं नाराज नहीं हूँ। और आप अब चुप करके बैठे। आप अब तरसेंगे मुझे साड़ी पहनकर देखने के लिए, लेकिन मैं भी अब नहीं पहनूंगी। यार ऐसे तो मत बोलो ना। जाएं अब। बच्चा सॉरी। इधर नताशा और राजान भी बातें कर रहे थे और अहमद मलिक और बेग साहब भी। जी बेग साहब, तो बताएं क्या बात करनी है आपने? मैं अपने भांजे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। उम्मीद करें बहुत खुश रखेगा ये। और बेशक ये अमेरिका रहा है, लेकिन आज तक किसी लड़की को इसने आंख उठा कर नहीं देखा। और बात तो वो ठीक ही कर रहे थे, क्योंकि हादी इंतहाई सुलझा हुआ और हैंडसम लड़का था। और यहाँ अहमद मलिक, राजान, आर्यान, अनाया और बाकी सबको शौक लगा था। और अहमद मलिक सोच में पड़ गए थे। लेकिन अंकल, मेरी बहन अभी बहुत छोटी है। ये क्या कह रहे हैं आप? आर्यान उठ खड़ा हुआ था। आर्यान बेटा, हम अभी सिर्फ मंगनी करेंगे। लेकिन अंकल, मेरी बहन को अभी कुछ नहीं पता, वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए आप अभी वेट करें, कुछ सालों बाद आइएगा। आर्यान गुस्से से बोला था। आर्यान, तुम चुप करके बैठो। लेकिन डैड, मैंने कहा ना। बाबा, आर्यान ठीक कह रहा है। ज़िहान भी उठा था। अंकल, अनाया अभी छोटी है, आप बात को समझे। राजान भी उठा था। तुम सब बैठ जाओ। ठीक है बेग साहब, 2 दिन बाद मंगनी की तकरीब हम रख लेते हैं। मामू जान जी, क्या कह रहे हैं आप? राजान, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मंगनी का मैंने कहा है, तुम सब बैठो। डैड, मेरी भी अनाया बहन है, मतलब हमारी कोई वैल्यू है या नहीं? आर्यान गुस्से से बोला था। आर्यान, तुम मंगनी के बाद हादी को तुम पर रख लेना, इसमें क्या है? कौन सा मैं कल शादी कर रहा हूँ अनाया की? लेकिन मामू, आर्यान ठीक कह रहा है। तुम लोग अभी छोटे हो और ये मेरा फैसला है कि अनाया की मंगनी हादी से ही होगी। लेकिन मामू, डैड, बाबा, सब ने कहा था। बेग साहब, आप तैयारी करें मंगनी की। मुझे यकीन है कि हादी मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का साबित होगा। जी अंकल, आप यकीन रखें। हादी सर झुकाए कहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग चाय पीकर चले जाते हैं। वाह डैड वाह, हमें तो 1 मिनट में आपने पराया कर दिया। आर्यान ताली बजाकर कहता है।
चलें, मुझे छोड़ें। आपने तो ना चाचू से, ना अंकल से, ना फूफो से, किसी से मशवरा तक नहीं किया। आर्यन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने अनाया का निकाह कर दिया हो और बुलाया भी ना हो। जैसे आप मंगनी में हमें मेहमानों की तरह बुलाएंगे ना, उसी तरह आपने निकाह भी कर देना है और बताना भी नहीं है। राजान भी गुस्से से कहता है, हाँ, और मैं तो कुछ लगता ही नहीं था ना अनाया का, मतलब बड़ा भाई हूँ, पूछ ही लेते मुझसे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, तुम कौन और मैं कौन। ज़ियान उठकर कहता है, भाई आप लोगों की तो मंगनी नहीं हो रही ना, जिसकी हो रही है बाबा ने तो उससे भी पूछना तक गवारा नहीं किया। अनाया कहती है, और मैं तो भाई था ना, मेरी भी अनाया बेटी है, लेकिन भाई ने आज तक मुझे तो छोटा ही समझा है, लेकिन मशवरा तो कर लेते। कामिल साहब कहते हैं, चलो तुम सब तो बच्चे हो, मैं तो बहन हूँ ना। आगे मेरे बेटे की कर दी और मुझे तब बताया, अब अपनी बेटी की भी कर दी और हमसे पूछो भी नहीं। लैला बेगम कहती है, अरे लैला, मैंने की कब है अभी मंगनी। अहमद मलिक कहते हैं, तो मुझसे कब पूछा, मैं भी तो पास ही बैठी थी। हमना बेगम कहती हैं, और कोई रह गया है जिसने कुछ कहना हो। अहमद मलिक सबकी तरफ नज़र घुमाते हुए कहते हैं, नहीं, अब रह क्या गया है कहने को, हम जा रहे हैं अपने घर, और ना अब हम आ रहे हैं मंगनी पर, खुद ही कर लीजिएगा। राजान कहता है, राजान बेटा बैठो, बात तो सुनो। अब कुछ नहीं सुना मैंने, चले मम्मा। हाँ भाई, जा रही हूँ मैं भी। लैला बैठो, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, शहरोज समझाओ कुछ। लैला बैठो। राजान तुम भी बैठो। लैला बेगम बैठ जाती हैं। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा, तुम खड़े होकर सुन दो। शहरोज साहब कहते हैं, बाबा सीरियस बात चल रही है, आप मजाक के मूड में हैं। नहीं भाई, मैंने कब मजाक किया। अच्छा बैठ जा राजान, फिर बात करेंगे। शहरोज साहब कहते हैं, डैड आप अभी अभी इनकार करें, मुझे नहीं पता, जो मर्जी करें। आर्यन कहता है, क्यों, तू बाप है अनाया का? बट डैड, आई एम हर ब्रदर। देखो तुम लोग, लड़का बहुत प्यारा भी है और शरीफ भी, इसलिए मैंने अभी मंगनी के लिए हाँ कर दिया, बाकी तुम लोग बाद में उसे परख लेना। नहीं डैड, वो शरीफ है तो हम बगैरत हैं, आपका ये कहने का मतलब है। आर्यन कहता है, आर्यन मेरे साहबजादे, तू अपना मुंह बंद ही रख। अहमद मलिक कहते हैं, अब बताओ लैला, कामिल, अभी भी तुम नाराज हो? जी भाई साहब। दोनों कहते हैं, कैसे अब समझाऊं मैं? आप कुछ मत समझाएं, हम जा रहे हैं अपने घर। चले मम्मा, और मैं अपनी बहनों को भी साथ ही लेकर जाऊंगा। चलो निदारो मायमा। अहमद मलिक माथे पर हाथ रख लेते हैं। हाँ चले भाई, वैसे भी हमारी तो यहाँ कदर ही नहीं है। मायमा भी मुंह बनाकर चल पड़ती है। सबके तो मुंह ही खुल जाते हैं। आर्यन के मुंह से भी निकलता है, अरे यार बच्चा, मैंने कब नाकदरी की आपकी। आर्यन कहता है, बताऊं आपको, रात को की थी, फिर अपनी बार बुरा मान जाते हैं। उमायमा बच्चा, आप कहीं नहीं जा रही, आप वापस आओ। ओए साले, मेरी बहन मेरे साथ ही जाएगी। राजान कहता है, तू मेरा साला है, मैं तेरा नहीं, और मेरी बीवी तेरे साथ नहीं जाएगी। मैं भी देखता हूँ फिर कौन रोकता है मुझे। तू ले जा कर दिखा, फिर बताता हूँ तुझे। लेकर तो मैं भी अभी जाऊंगा अपनी बहनों को। खामोश। अहमद मलिक ऊंचा बोलते हैं, सब के सब बैठ जाओ अपनी जगहों पर, कोई कहीं नहीं जाएगा, बल्कि जाओ तैयारियां करो अपने अपने कमरों में सब जाओ, और जिसको कुछ कहना है वो बैठा रहे। ऐसी मंगनी हो रही है जहाँ लड़की लड़के को जानती ही नहीं है। वाह जी। अनाया जाते जाते बोल गई थी, ये लड़की काबू में ही नहीं आ रही, इसलिए बस मैं मंगनी कर रहा हूँ उसकी, नहीं तो वो क्या पट्टा डाल कर रखेगा अनाया को। राजान तो भड़क ही उठा था। मेरा मतलब है कि वो थोड़ा खुले मिलेगी उससे, और कॉलेज भी वो छोड़ आया करेगा। देखे मामू जान, ये गलत बात है, और मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो अनाया के करीब भी भटके। और आप कॉलेज जाने की बात कर रहे हैं, ज़ियान भाई यहीं पर हैं, आर्यन जहाँ है, मैं हूँ, फारिस है, क्या हम सब मर गए हैं जो आप उसको जिम्मेदारी देना चाहते हैं? राजान गुस्से से कहता है, अस्तगफिरुल्लाह राजान, कैसी बातें कर रहे हो, और मैंने कभी का कहा है। देखिए बाबा, राजान ठीक कह रहा है। यस डैड, राजान ठीक कह रहा है, मैं उस लड़के को अपनी बहन के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा।
मंगनी तक ठीक है, लेकिन ये मेल मिलाप मैं नहीं होने दूंगा, और अगर वो अनाया से 1 फुट के फासले पर भी हुआ तो उसकी हड्डियां मैं खुद तोड़ूंगा, आर्यान ने गुस्से से कहा था। आर्यान, दफा हो जाओ अपने कमरे में, अहमद मलिक जोर से बोले थे। वो गुस्से से सीढ़ियां फलांगते हुए अपने कमरे में चला गया था। बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए थे। राजान, क्या कह रहे थे ये तुम बाहर? लैला बेगम कहती हैं। मम्मा, मैंने क्या गलत बात की, ये भी तो बताएं। वो भी छोटी है और मामू जान ने किसी से मशवरा तक नहीं किया। राजान, भाई साहब बेहतर जानते हैं, उनकी बेटी है और उन्होंने बेहतर फैसला ही किया होगा, शहरोज साहब कहते हैं। लेकिन बाबा, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना, तो तुम अपनी मंगेतर पर ध्यान दो राजान, लैला बेगम ने उससे कहा था। मैं जा रहा हूँ, आप लोगों से तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, ना आप सुनते हैं मेरी बात। मुझे तो यही लगता है कि मैं तो आपका बेटा ही नहीं हूँ, मुझे तो कहीं से उठा कर लाए थे, राजान उठते हुए कहता है। बेटा, अगर उठा कर लाना था कहीं से तो तुझे ही क्यों लाते, शहरोज साहब ने कहा था। व्हाट? बाबा यार कुछ करे ना। मैं क्या करूं? मामा आप ही कर दे। राजान, मेरा दिमाग ना खराब करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर उस लड़के पर फातिहा पढ़ने की तैयारी कर ले। खबरदार राजान, जो तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शहरोज साहब गुस्से से कहते हैं। आर्यान कमरे में टहल रहा था। वो चेयर को पाँव से ठोकर मारता है और शोपीस उठाकर जोर से नीचे फेंकता है। उमामा का दिल बाहर को आया था। कितना गुस्सा आता था आर्यान को, वो सोच कर रह गई थी। अभी तो उसने आर्यान का दूसरा रूप नहीं देखा था, नहीं तो वो उसके पास आने से भी कतराती। वो सोफे के साथ चिपक कर बैठ चुकी थी। वो भी जाकर उसके साथ सोफे पर बैठ गया। वो मजीद दूर हुई। क्या हो गया है बच्चा, खैर है? वो मजीद करीब हुआ। वो खड़ी हो गई, वो भी खड़ा हुआ और उसको पकड़कर अपने पास किया। यार क्या हो गया है, ऐसे दूर क्यों हो रही हैं? आन, मुझसे दूर हो आप। लेकिन क्यों? कहीं गुस्से में उठाकर मुझे भी फेंक दिए फिर? मैं पागल हूँ जो आपको फेंकूंगा? तो अभी क्या पागल थे जो चीज उठाकर फेंक रहे थे? वो गहरा सांस लेकर रह गया था। वो तो मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए बस, तो मुझे गुस्से में फेंक दिए फिर, इसलिए मैं जा रही हूँ बाहर। यार बच्चा, मैं आपको थोड़ी फेंकूंगा गुस्से में। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है आपसे जब आप गुस्से में होते हैं, ऐसे लगता है चबा जाएंगे। वो मुस्कुरा दिया था। तुम भी ना कमाल करती हो, मतलब इतनी ज्यादा अक्ल कहाँ से लाती हो? अपने दिमाग से। अच्छा, फिर थोड़ी मुझे भी दे दो। क्यों दूं? अपनी यूज करें। देखा डैड, कहा था मैंने, वो लोग मान जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो है। अहमद मलिक और उनकी फैमिली बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जी मामू, और लड़की तो बहुत प्यारी है, कितनी मासूम सी है। अच्छा जी, बहुत तेज है तू। माय डियर कजन, तू जल मत ज्यादा। अच्छा, अब वो तुमसे ज्यादा प्यारी है तो क्या कर सकते हैं आप? ओ हेलो, मैं क्यों चलूंगी? और हाँ, ये बात ठीक है कि वो प्यारी है। देखा, पसंद किसकी है? बेटा ऐसे नहीं कहते। तू ये देख कि बेटी किसकी है। अच्छा मामू मुमानी, मैं रूम में जा रहा हूँ, फिर शॉपिंग पर भी जाना है। हाँ बेटा जाओ। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।